pleasant morning to one and all. In 2013, a group of students in Qatar came forward with a determination not to settle with the existing coaching facilities when their parents stood firm behind them with the fullest of their support. Global Education Center emerged. We became humbler when we could generate the best results in Qatar and abolished all the limiting beliefs of Middle East students by giving enthralling results, which was considered earlier impossible. We made it possible because we believe in our dreams. APJ Abdul Kalam said, if you believe in your dreams, impossible can be made possible. And we have made possible here at Global Education Center. टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम सेमिनार से वेबिनार कंडक्ट करने लगेंगे. Change is our future. The sooner we adapt to change, the better. I, Rekha Shri Kumar, on behalf of Global Education Institutions Middle East, welcome you all to this webinar. A hearty welcome to Shri Anand Kumar ji, who was kind enough to conduct this webinar for all of us. A warm welcome to the Managing Director of Global Education Center, Mr. Ashraf Achur, and the Managing Partners, Mr. Shri Kumar and Mrs. Preeti Srivastava. I would like to welcome our extended family in Oman, the Global IITians partner, Mr. Adib Patel and Mr. Adil Patel. All the dignitaries present here. And last but not the least, a very warm welcome to all the students and parents. Welcome all to this wonderful webinar. Most of us know about Global Education Center, but let's know it through the eyes of our Managing Director, Mr. Ashraf Achur. Let's see an AV. Hello everyone, good morning. I'm Ashraf Achur, Managing Director of Global Group of Education Institutions, Middle East. I would like to welcome all of you for the long-awaited moments with the great mathematician and philanthropist, Mr. Anand Kumar sir. For GEC, this is another milestone in the long journey of its services to the Indian community in the Middle East. Global Education Center was established in 2013 at Old Airport, Doha, Qatar, conducting various sessions which include regular tuition classes for CBSE and IGCSE, coaching for IIT-JEE, NEET and all other competitive examinations, brain-o-brain, robotics and many other courses. In 2018, GEC established its branches in 2 more cities in Qatar, Wakra and Al Khor. In 2020, GEC started its first branch outside Qatar in Wadi Kabir, Oman, with a new name Global IITians, which is the 4th center under GEC umbrella. GEC integrated its curriculum with an online platform which provides the comprehensive content of grades 6 to 12 CBSE. It is gradually developing a video bank in which all the videos are prepared by its own faculty members. There are 25 teachers and 15 other staff members in the family as of now. Global Education Center is all set to widen its umbrella by adding a lot more courses in its bouquet. We also have a plan to start branches in different cities of the GCC countries such as UAE, Kuwait and Bahrain. The future plan includes offline centers in all the important cities in the Middle East as well as in India, with a unique hybrid model which blends online and offline coaching facilities under the same brand. I know that you all are eagerly waiting to hear from Mr. Anand Kumar sir. I also, like you, consider this as golden moments in my life. When Anandji visited GEC centers in January, he addressed 3 seminars and hundreds of students and parents got benefited out of it. Fortunately, now
the students in the whole Middle East is getting the chance to have a great session by him. Anandji doesn't need any introduction. In early 2000, while running his coaching institute, Ramanujan School of Mathematics, a poor student who cannot afford to pay the fee because of poverty approached him for IIT JEE coaching, and that motivated him to start Super 30 classes. He selected 30 students from poor background, taught them freely, boarded for free of cost. His mom cooked for all of them. His brother Pranavji managed the entire program. By the hard effort of the whole family, all the 30 students got selected into IIT. Anandji retains these excellent results for past 18 years. Anand Kumar sir received a lot of awards from the government and private organizations in different parts of the world. In 2019, a Bollywood movie was produced about his life and works in the name Super 30, which was starred by Hrithik Roshan and was a massive hit in the box office. The movie became an inspiration for millions of students and teachers across the world. Now, Anandji is going to reveal the secrets of success to the GEC family members in the Middle East. All of you are welcome. Thank you, sir. Now, Ms. Mona Puri, the moderator of today's webinar, will take the charge. Mona ma'am is the founder of Sumit Foundation. Some people work silently and let their deed make all the noise, and Mona ma'am is one of them. Though shouldering the responsibility of a big education group, her passion to work for students from the underprivileged section of the society is what makes her different. Inspired by the globally acclaimed Super 30 mathematician Anand Kumar, she has taken a number of initiatives to help the poor under the banner of Sumit Foundation. The list is long, but now I think it's time for Mona ma'am to take over the platform and start the webinar. Mona ma'am. Thanks a lot, Rekha ji, for the great words of wisdom. It's a pleasure and a great opportunity to be a part of this grand webinar on the platform of Global Education Center and Global IITians, where we are connected with students from Oman, Qatar, and other parts of the world. As we were discussing about the topic with others, many questions came to my mind. बहुत लोग सक्सेस की बातें करते हैं. कौन है जिसको सफलता अच्छी नहीं लगती? कौन है जो नीले आसमान में पंख फैलाए उड़ना नहीं चाहता? कौन है जो आईआईटी या नीट क्वालिफाई करना नहीं चाहता? जितने लोग भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक सेकंड के लिए आंख बंद कर अपने आप से ये प्रश्न पूछें. Ask this question to yourself. Don't you want to be successful? Don't you want to qualify IIT or NEET and come out with flying colors? The answer obviously is yes. But the biggest question is how? How to be successful? What is the secret of success? We have with us someone from Germany, especially joined with us early morning before driving down to the office, Mr. Shiv Ranjan. एक गांव का लड़का, छोटा सा गांव समस्तीपुर बिहार, माता पिता की आमदनी, फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ना होने के कारण अपनी नानी के घर में पढ़ाई करता है और प्रेजेंटली डच टेलीकॉम, जो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है यूरोप की, वहां पे ही इज अ पेगा एडवाइजर, दैट इज अ सीनियर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट. वी वेलकम यू मिस्टर शिवरंजन एंड वी वुड लाइक यू to share your journey, Samastipur to Germany. Over to Shri Ranjan.
First of all, I would like to take blessing from Anand sir and greetings to all participants. I'm privileged to join this specific session on this global platform. So thank you so much, Mona ma'am, to introduce me in this round. And जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कोरोना के समय में it's very difficult to connect all together, but thanks for all effort which was made together to have this kind of session. So मेरा नाम शिवरंजन है, मैं जर्मनी में पिछले 4 साल से डॉयचे टेलीकॉम में काम करता हूँ। टेलीकॉम एक कंपनी है जो कि यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी है और मैं उसमें सीनियर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट की तरह काम करता हूँ। तो it's all started almost when I was 2 years old, right? So मेरे पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं थे कि वो मुझे अच्छी जगह पढ़ा पाते और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं जर्मनी में आके बसूंगा और यहाँ पे इतने अच्छे तरह से रह पाऊंगा। तो 2 साल जब मैं 2 साल का था तो मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण मुझे नानी गांव जाना पड़ा और वहां पे भी मेरी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल्स एंड समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। और मैं जब भी इस कॉलेज जाता था तो एक टेंपल के सामने यही प्रे करता था कि भगवान मुझे अगर 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये आप सोच सकते हो कि मतलब कहाँ पे ये सोच थी मेरी। उसके बाद अचानक मुझे एक मेरे गांव के ही रहने वाले अंकल जो कि कुम्हरार में रहते थे, उन्होंने बताया आनंद सर के बारे में, क्योंकि मैं पटना कभी आया नहीं था, मैं गांव में ही रहता था और मुझे पता भी नहीं था क्या है। तो जब मैं पटना आया तो उन्होंने मुझे आनंद सर के बारे में बताया और मैं खुद से जाकर आनंद सर से मिलने का सोचा। मैं 2-3 दिन तो मैं बहुत डरा रहा कि मैं कैसे मिल पाऊंगा और इतने लोगों के बीच में वो मुझे मतलब कैसे एड्रेस कर पाएंगे। तो जैसा कि मोना मैम ने कहा, प्रणव सर जो कि आनंद सर के भाई हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत सारे सोशल वर्किंग में भी कनेक्टेड रहते हैं। इस कोरोना के समय में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी सोसाइटी को। तो मैं जब फर्स्ट टाइम प्रणव सर से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि प्रणव सर ही आनंद सर हैं, बिकॉज they both are identical, means you cannot compare. If you are meeting them first time, then you cannot compare. So it was 2006 जब मैं फर्स्ट टाइम आनंद सर से मिला और मैंने उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताई और उन्होंने पेशेंसली सुना फर्स्ट टाइम। या सो दैट इज समथिंग डिफरेंट अबाउट आनंद सर। और उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही बात कहा, शिवरंजन जी आपने जितनी बातें मुझे सुनाई है, अगर आप एक काम कर सकते हो कि जितनी बातें आपने मुझे सुनाई हो और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप उतने ही मन लगाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करें और पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आप जैसा कि आप लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी, उसकी एक एक कहानी बिल्कुल सच है। और आनंद सर, और जब हम लोगों ने उस फिल्म को देखा तो हमारे रोए खड़े हो गए और हम ऑलमोस्ट वी वर क्राइंग, या सो बिकॉज वी हैव फेस्ड दिस स्पेसिफिक सिनेरियो। या so Anand sir, or important thing about Anand sir, I just want to, there are multiple things. If I start talking about Anand sir, it's like you can listen for 2-3 days, 4 days, I would say. So 2 important things which I consider about Anand sir is, first thing is simplicity is one of the best thing which he keeps on his shoulder from beginning, right? So you will never see any difference from Anand sir when he has started long back, and now you can see he is sitting here in front of us. So there is no difference between his initial journey and the current journey. एंड 2 इंपॉर्टेंट थिंग आप देखेंगे, आनंद सर कभी भी किसी गरीब और अमीर लोगों के बीच कोई डिफरेंस नहीं रखते। वो उतने ही शिद्दत से पढ़ाते हैं जितने शिद्दत से उन्हें एक टीचर की तरह पढ़ाना चाहिए। तो ये 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2006 में जब मैं आनंद सर से मिला तो मेरी जर्नी इनके यहाँ स्टार्ट हुई, पढ़ाई स्टार्ट हुआ। ये न ही मेरे टीचर थे बल्कि मुझे मेंटर की तरह भी मुझे बताया करते थे कि सिर्फ कैसे करना चाहिए, और जब भी तुम कुछ भी करो शिद्दत के साथ करो और हमेशा सोचो कि तुम मतलब अपने परिवार के लिए कर रहे हो और तुम जहां भी जाओगे मेरा भी नाम रोशन करोगे, अपना नाम रोशन करोगे और परिवार का नाम रोशन करोगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिछले 4 साल से मैं जर्मनी में हूं, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट आनंद सर, आई वुड से। सो देयर आर मल्टीपल स्टोरी, बट आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर सम 5 important point with all participants. So first thing is like when we were studying in Anand sir session, right? So that time only, first time we imagined that we are in engineering college. So मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा होगा, लेकिन आनंद सर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी वो पढ़ाते थे भोलू रिक्की और कोई भी कहानी बताते थे तो वो आपको ये इमेजिन कराते थे। यू आर नॉट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन बट यू आर आल्सो थिंकिंग योरसेल्फ इन दैट फील्ड, राइट? सो वंस यू थिंक यू आर सिटिंग देयर, देन यू शुड बी एबल टू लाइक प्रोवाइड मल्टीपल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट थिंग लाइज वर्चुअल इमेजिनेशन। सो आनंद सर के साथ पढ़ते पढ़ते हमने पहली बार कॉलेज के बारे में जाना कि कैसे कॉलेज में बैठ सकते हैं और क्या हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
sirf like 5 questions are there in one chapter, so you complete all 5 questions, job done. It's not like that, right? So first thing is, whenever you start working on any solution, you need to make sure that you have multiple way of thinking, right? So ये आपके मतलब सिर्फ IIT क्लियर करने या NIT क्लियर करने के लिए नहीं काम आएगा, बट जीवन के हर एक रास्ते पे आपको ये मल्टीपल रिसोल्यूशन टाइप, अगर एक रास्ता फेल हो गया तो दूसरा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा. Third thing is important. I like to add over here. This is what you are briefing us about, and as you said, it's a endless. If you start, and I am also one of my inspiration is Anand sir, and दिन महीने मतलब बातें करते जाएं तो it's endless. But I just like to interrupt over here, as I also know that you have to push off to the office. Just in a sentence or two, how do you feel sitting in Germany over there when you think back where you started? Just in a few words, how will you give the audience over here that success mantra, जो successful होने के बाद how you feel? That would be really helpful right now. Please. Exactly. So one important thing is overconfidence is not good for us. We need to also make sure that we are not overconfident. Revise and revise. Anand sir हमेशा यही समझाते थे कि आप revise करें. So if you do this revision multiple times, then sometimes you will be able to see question and resolve a question immediately. And about how am I feeling, I would say in my family, in 2018, I was able to call my parents here in Germany. When they landed in Germany, first time they told Siv, means they were the first person from my family who came abroad, right? So now you can understand the success mantra of Anand sir guidance, right? So they just told me that अगर आनंद सर तुम्हारे जीवन में नहीं आते तो शायद तुम भी उसी गांव में वही काम करते होते जो आज हम लोग कर रहे हैं. तो ये सबसे बड़ा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मेरे जीवन का parents, as a parent, because I'm also a parent, and it's such a nice कि हाँ एक बेटे ने travel कराया उनको समस्तीपुर और किसी गांव से Germany. I really appreciate that, and the motivator behind the success of Shiv Ranjan ji and many more is here with us. It's a real pleasurable day and a memorable day it will be. That is for sure. But before inviting him and introducing him on this platform, we would like to thank Shiv Ranjan for joining us with us. And I know that you have to leave for work. That's why we started with it. Hope you have a wonderful day. And taking it ahead, thank you so much. We have among us the great personality, वो शख्स जिनकी कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखी गई है. A vision of stars grounded in the dust of rural India. वो शख्स जो सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. Super 30 Anand sir. He is not only a teacher, a mathematician, but a revolution in the world of mathematics. ये मैं नहीं बोल रही, but according to the New York Times, IIT clear करने का success ratio is just 2%. And it's much more difficult than the entrance test of Harvard and MIT. But for Super 30 Anand Kumar sir, 30 में से 30 बच्चे IIT or else NIT qualify कर जाते. In the last 17 years of Super 30, a phenomenal 510 students have made to the top technical institutes of India, and mostly it's IITs. Discovery Channel has made an hour-long documentary on Super 30, Anand sir, described it as a revolutionary experiment to bring about a social change. Times magazine has selected the school of Super 30 in the list of Best of Asia 2010. He has been selected by the UK-based magazine Monocle among the list of 20 pioneering teachers of the world. Anand sir received praise from United States President Barack Obama's special envoy Rashad Hussain, who termed it the best institute in the country. Newsweek magazine has taken note of the initiative of Anand sir, Super 30, and included the school in the list of 4 most innovative schools in the world. Anand sir also helped Amitabh Bachchan in preparing his role in the film Arakshan.
He was also honored by the government of British Columbia, Canada. सर, आपका इस मंच पे हम सब बच्चों और ऑडियंस की तरफ से, GEC की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हम सब ये जानना चाहते हैं सर, आपने सुपर 30 की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ओवर टू आनंद सर, उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। जी नमस्कार। दरअसल में मैं बचपन से ही चाहता था कि मैथमेटिक्स में कुछ नया करूं, मैथमेटिक्स में कुछ बड़ा करूं। इसके लिए हमेशा प्रयास करता था, क्योंकि हमारे पिताजी मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। उन्होंने कभी दबाव नहीं बनाया कि बेटा तू डॉक्टर बन जा या इंजीनियर बनो या फिर कोई बड़ी नौकरी करो। हमेशा कहते थे कि जितना हो सके तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस लिहाज से मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में धीरे 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 बढ़ता गया। हमारे कुछ पेपर्स बाहर के जर्नल्स में पब्लिश हुए, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए, कुछ प्रॉब्लम्स पब्लिश हुए। मेरा हौसला और बढ़ा। और ये जो जर्नल्स में पब्लिश हुए, इसके लिए बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पटना शहर में कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी जहां अवेलेबल हो कुछ बुक्स, कुछ किताबें, कुछ जर्नल्स जिसमें नई नई चीजें हो। तो जर्नल्स को पढ़ने के लिए मैं BHU जाता था, बनारस जाता था, जैसा कि आप फिल्मों में देखा, ट्रेन पर जाता था। और हमारा भाई छोटा प्रणव वही वायलिन सीखता, तो उसी के साथ रहता था, उसी के साथ समय गुजारता था और दिन भर पढ़ाई करता था। शाम को, रात को फिर हम लोग दोनों साथ खाना पीना करते थे, जमीन पर सोते थे। ये स्ट्रगल चलता रहा, पेपर पब्लिश होते गए, उत्साह बढ़ते गया। और एक दिन हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। हमारे गुरु ऑनरेबल डॉक्टर DP वर्मा ने बोला, जो SC वर्मा जिनकी किताब बहुत मशहूर है फिजिक्स में, उनके अपने बड़े भाई, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, वो हमारे गुरु है, कि बेटा ऐसा करो कि तुम कैम्ब्रिज के लिए अप्लाई करो, देखो ये फॉर्म आया हुआ है कॉलेज में। मैंने उसे भरा, उसे फिल किया और मैंने सेंड किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा एडमिशन कैम्ब्रिज में हुआ। लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, फिनेंशियल कंडीशन इतने खराब थे कि हमारे लिए फ्लाइट का फेयर तक जुटाना बड़ा मुश्किल था। पिताजी ने, हमने, जैसा कि फिल्म में देखा, हमने कई प्रयास किए, कई पॉलिटिशियन के पास गए, कई जगहों के पास गया, लेकिन किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। इसी टेंशन में, इसी कष्ट में पिताजी बहुत चिंतित रहने लगे। और एक दिन हम लोग पूरा परिवार खाना खा रहे थे, पिताजी का सडन डेथ हो गया। हालांकि हम लोग उनको समझाते थे कि देखिए पिताजी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरा भाई प्रणव, माताजी, सब लोग उनको हौसला देते थे। फिर भी वो बहुत चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़े। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कोचिंग सेंटर्स में काम किया। फिर अचानक मुझे लगा कि नहीं, ऐसे गरीब बच्चे हमारे देश में भरे पड़े हैं जिनकी प्रतिभा का जवाब नहीं, बस उनको पढ़ाने वाला कोई चाहिए। जरूरत तो इस बात की उनको कोई अच्छा रास्ता दिखाए। तब हमने सुपर 30 की शुरुआत की। मेरा भाई प्रणव सहयोग की बात बोला कि ठीक है भैया, मैं सहयोग दूंगा। माताजी खाना बनाने लगी। और आज जो देखेंगे आप, बहुत सारे बच्चों से इसके बाद भी आपसे मुलाकात होगी, सारे बच्चे उसी झोपड़ी में पड़े हुए जहां माताजी पढ़ाती, खाना खिलाती थी और हम पढ़ाया करते थे। इस तरह से संघर्ष शुरू हुआ और सुपर 30 की शुरुआत। थैंक यू सर। जब सुपर 30 का नाम आता है तो उसी सुपर 30 के एक और स्टूडेंट रवीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Okay. Welcome Ravish to the webinar of Global IITians. रवीश, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, as you know, कि डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए IIT की तैयारी के लिए? How many hours should we dedicate to the studies of IIT, preparation of IIT rather than, if you quote, because I know that you have been a part of Super 30 program. So kindly tell, how many hours did you devoted and what was your study routine types? Yes, ma'am. So this question is very generous and very abstract as well. So many students from the past years have also asked this question to us. So how many hours do we have to study for cracking JEE or the NEET exam? So it's basically upon you. So if you feel that
studying 3 to 4 hours on your own will be sufficient, that's upon you. But I personally feel that just to divide the sections of study hours will be very beneficial. Like for the first 2 or 3 hours, if you choose this study hour to for your self study, and some portion of your study hours into a group study, then it will be very beneficial. So I think 7 to 8 hours will be very crucial to crack the JEE exam, because that's the average kind of thing for every student. Ravish, where are you right now? Just brief yourself कि अभी आप कहाँ पे हैं and what are you doing? You are in Pune, I believe, right now, and you are a pass out of 2014 batch, I believe. So, Yeah, ma'am. Super 30. So, what are you doing in Pune right now? So, ma'am, I am from Super 30 2014 batch. I graduated from IIT Kanpur in 2018 from Electrical Engineering Department. And from since then, only I am working with KPIT Technologies as a artificial intelligence developer. So I am developing AI models for the autonomous vehicles currently with KPIT Technologies. Nice to know that you are developing. आनंद सर, आपके पास ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है, कोई मैजिक स्टिक जो आप सभी बच्चे IIT and IIT कर जाते हैं? सर कुछ इस बारे में बताएंगे प्लीज आप, वो जादू की छड़ी हमें भी देखनी है। दरअसल में कोई जादू की छड़ी हमारे पास है नहीं, मेहनत सबसे बड़ा हथियार है। ये रवीश, जिस बच्चे की बात अभी हम लोग कर रहे थे, जिससे मुलाकात हो रहे थे, बहुत मेहनती बच्चा। ये लोग कहने के लिए बच्चा बताया आपको रवीश कि हम लोग 4 घंटे 5 घंटे पढ़े, लेकिन जब देखिए तब हम पढ़ते ही देखते थे रवीश। सुबह जाइए हॉस्टल में, बगल में घर में हॉस्टल था, अगर आप सुबह 6 बजे जाइए तो पढ़ाई हो रही है, शाम को जाइए तो पढ़ाई हो रही है, रात को जाइए तो पढ़ाई हो रही है, और खाना खाने के लिए माँ जब खाना खिला रही है, सब बच्चे खा रहे हैं, वहां भी कभी कभी लोगों में झगड़ा होने लगता था, बहस। मैं जाता था कि क्या बात है भाई, लोग इतना बहस कर रहे हैं, इतनी लॉजिक हो रही है, क्या बात है? तो वो भी पढ़ाई पर ही होती थी कि नहीं ये सवाल ऐसे ऐसे होगा, ये सवाल ऐसा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑल स्टूडेंट्स को कि सबसे ज्यादा सबसे ताकतवर जो टूल है आपके पास वो मेहनत। अगर आप मेहनत करिएगा तो सभी चीजें आसान हो जाएंगी। कोई भी चैप्टर को पढ़िए तो उसको रटिए मत, हाउ एंड व्हाई जानने का प्रयास करिए, डेप्थ में जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो आप बाइनोमियल थ्योरम का सिर्फ एक्सपेंशन को मेंशन करके प्रॉब्लम तो बना लेंगे, लेकिन कुछ नया नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्रिएटिव होना है, इनोवेटिव होना है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी जाने, बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी जाने, बाइनोमियल थ्योरम जान लिया तो ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होगा इसको भी जाने। इस तरह से हर चीज का हाउ एंड व्हाई जाने, एक ही प्रॉब्लम्स को कई तरीके से कैसे बना सकते, हो सके कोई अलजेब्रा का सवाल अच्छा लगे उसको ज्योमेट्रिक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। श्री कुमार जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है ग्लोबल IITN के तहत, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में हम लोग एक आपके नेतृत्व में, मोना जी के नेतृत्व में एक अच्छा क्लास का भी ऑर्गेनाइज करेंगे कि कोई प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से हमारे स्टूडेंट और हम लोग मिलजुल कर बना के दिखाएंगे कि एक ही सवाल को कैसे और क्या सोचा जाए कि अलग अलग तरीकों से बनाया जाए। प्रॉब्लम बन जाए तो उसको जनरलाइज करिए, उससे मिलता जुलता सिमिलर प्रॉब्लम्स को खोजने का। Thank you, sir. So we have a guest from Dubai joining us from Dubai, Jitinder Singh ji. पंजाब के माझा गांव के कुलचे छोले बेचने वाले का बेटा न्यूज़पेपर के माध्यम से सुपर 30 तक पहुंचा और फिर IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस and now in Dubai as a data analyst. We welcome you, Mr. Jitinder Singh ji, over here on behalf of Global IITians and Global Education Center Group. And I'm really proud to tell you that there are thousands of students joined with us on this platform. And this platform, I'd like to question you, what do you feel like your success from a village to Dubai? Chama Chowk, wahan to bas har taraf roshni roshni.
और आज आप अगर अपने पिताजी से मिलते हैं या घर जाते हैं, what is the feeling you have? Share your feeling about that, please, Jatinder Singh ji. Hello, good morning, everyone, and thank you for kind words and appreciative words. So, feeling to ma'am yahi hai ki it's a feeling of satisfaction and of the knowledge that if you work hard and if there are people, good people like Anand sir and wise people like my father who are there to support you, and then definitely struggle, hard work pays off. That knowledge is a great source of security, I would say. So whenever you are in a tough problem, you know that okay, if you struggle, if you work hard, then definitely you will be able to overcome it. So that's the main feeling that I have regarding my life. सर आपको ये सब चीजें अगर आप कभी देयर आर टाइम्स व्हेन वन सिट बैक एंड थिंक्स अबाउट कि हमने कहाँ से शुरू किया, सो उस स्ट्रगल के कुछ चीजें आप शेयर करना चाहेंगे? यू लाइक टू शेयर दैट समटाइम्स यू वर डिमोटिवेटेड कि थक गया हूँ अब और नहीं, कितना पढ़ना है, हाउ मेनी टाइम्स हैव टू स्टडी, डिडंट यू फील दैट? और इफ यू लाइक टू शेयर इट विद द स्टूडेंट्स, बिकॉज द स्टूडेंट्स हैव मेनी क्वेश्चंस कि कितना पढ़ना है, कभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कभी मोटिवेशन लूज हो रहा है, एंड दिस टाइम ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, इट्स ऑब्वियसली समटाइम्स वी बिकम लेट बैक. आपके पूरे स्ट्रगल में कभी ऐसा नहीं आया कि छोड़ो बस करें, कितना पढ़ना है टाइप्स? No, I won't say such time never came. So I think it's very normal for young people mainly. So I also went through that. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा टारगेट रखते हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही बड़ा है, okay, which is much more difficult than you are currently capable of, then definitely ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं. then कभी प्रॉब्लम कोई सोल्व नहीं होता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं. सो दीज आर वेरी कॉमन फीलिंग्स, कॉमन इमोशन जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं. और इसका सोल्यूशन यही है कि इफ देयर इज समवन हु इज देयर टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, दैट्स डेफिनेटली a great boost. So that's what Anand sir did. He played a great role. So one particular thing that I personally remember about Anand sir is that he always told us motivational stories, success stories of his old students. So that always motivated. So it's not like that. There are people that there are super people that they don't get frustrated. It's not like that. The only thing is when you have set a goal that is much difficult, then definitely these things will occur. And if you have support, if you have motivator, mentor, then you will be able to overcome them. And specifically when you are solving problems, like if अगर कभी ऐसा होता है कि ओके मैं मैथ्स का प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ या फिजिक्स का प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ और मैं सोल्व नहीं कर पा रहा, so actually I have learned very good thing that there are two things that we should strive. That Anand sir always told that okay, try to solve problem in different ways as much as you can. So it's very important, not just for IIT, for life in general, that okay, we should be able to develop problem solving skills. ऐसा नहीं है कि आप एकदम से. I'll just interrupt over here. Sir, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी सर. जैसे ये अपनी स्ट्रगल के बारे में बता रहा है, तो क्या लाइफ के लिए भी क्या स्ट्रगल सॉल्व करने में या सॉल्यूशंस ढूंढने के क्या तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं? आपके स्ट्रगल में क्या आपने अपनी लाइफ पे भी ये अपनाया? Were you able to solve problems the way you are talking about in maths, that there are various ways of solution? तो लाइफ के प्रति आपका कैसा रहा है आनंद सर? सर आपको अनम्यूट कर लीजिए. जी बहुत बहुत थैंक्स मोना जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है. हम तो बल्कि हमारे स्टूडेंट और भी कई सुन रहे हैं, हम पहले ही दिन क्लास में पढ़ाते हैं हाउ टू सॉल्व इट, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, जिसमें दिखाते हैं कि मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो या लाइफ का प्रॉब्लम हो, चैलेंज हर जगह है. अगर आपको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया, उसी पैटर्न पर, फाइन पैटर्न, आप लाइफ का भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और एक ही समस्या के कई समाधान होते हैं. आपको कौन समाधान पसंद है, किस तरीके का पसंद है,
ये जरूरी है। अब देखिए कि समस्या आई, बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ थे, गांव देहात से आके, पंजाब से, उड़ीसा से, बहुत जगहों से बच्चे आके भी पढ़ते थे बिहार के अलावे। बावजूद इसके कि हमने किसी से कोई 1 रुपया चंदा नहीं लिया, ना प्राइवेट एजेंसी से ना गवर्नमेंट एजेंसी से। हमारे ऑनरेबल पास्ट पीएम मनमोहन सिंह जी बोले या नरेंद्र मोदी जी बोले, सबसे मुलाकात हुई, अंबानी साहब, महेंद्रा साहब, सब लोगों ने बोला कि भाई हम कुछ चंदा देते हैं। यहाँ तक कि श्री कुमार साहब ने भी बोला, जो ये ग्लोबल IITN के फाउंडर है, कि भाई कुछ देना चाहते हैं। लेकिन हमने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया, ट्यूशन पढ़ा के, कुछ लेक्चर दे के जो पैसा आता है उसी से हम बच्चों का और परिवार का भोजन भात चलता है। किसी से हमने 1 रुपया नहीं लिया। बावजूद इसके कई लोगों ने मुझ पर अटैक किया, और बहुत खतरनाक। फिल्म में तो आप एक अटैक देखे हैं, कई ऐसे अटैक हुए, जानलेवा हमला हुआ। मेरे एक बार मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ को पेट पे यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा चाकू से फाड़ दिया गया। तो पटना मेडिकल कॉलेज में हम लोग ले गए, बहुत दुखी थे, सोचा सुपर 30 चलाया जाए या नहीं चला जाए। बहुत लोग मना कर रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इतना चैलेंज ले रहे हो, क्यों इतना परेशानी ले रहे हो। फिर मैथमेटिक्स का ये फार्मूला याद आया कि पेशेंस रखिए, चीजें अच्छी होती। मैं सोच ही रहा था कि डॉक्टर आए, बोले कि भाई मुझे कुछ ब्लड चाहिए, कुछ बोतल्स ब्लड की आवश्यकता है। मैं सोच रहा था किस प्रणव को बोलने के लिए, प्रणव वहां पर खड़ा था कि 300 बच्चे हमारे अपने हाथ बढ़ाए कि भाई पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करो, पहले मेरा ग्रुप करो। एक पॉजिटिव माहौल बना, और इन बच्चों का इतना प्यार मिलता है कि लगता है कि चलो इस काम को करते रहना चाहिए। तो चैलेंज है। फिल्म रिलीज हो रही थी, कई लोगों को खड़ा करके हाई कोर्ट में जहां तहां केस करवाया, गुवाहाटी में, जबकि कोई वैसी बात नहीं थी। न मैं किसी से पैसा लिया, न मैं किसी का कुछ बिगाड़ा, मेहनत करके पढ़ाया। मेरा भाई अपनी जिंदगी लगा दिया, माता जी खाना बनाई। फिर भी किसी लोगों को, ऐसे लोग जो अपने कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में हताशा और निराशा के अलावा कुछ नहीं होता है, वो दूसरों के ही बिगाड़ कर कुछ अपना नाम बनाना चाहते। तो ऐसे लोग भी हमारे पीछे लग गए। पहले कोचिंग माफिया लगे, फिर ऐसे लोग लगे, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म हो गई। मैं कोर्ट में केस हुआ, एक डेट पे ही सारे केस खत्म हो गए। तो ऐसी चीजें होती रहती है। अभी फिल्म रिलीज होने के टाइम बहुत रुकवाने का प्रयास किया गया, इसको रोको, किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने दो। लेकिन देखिए फिल्म सुपरहिट हुई। इस चक्कर में कि भाई फिल्म को डैमेज किया जाए, इसको मानसिक प्रताड़ना दिया, इसके भाई की हत्या कर दो। जानलेवा हमला हुआ हमारे भाई प्रणव पर, उसके पैरों पर हाईवा ट्रक चढ़ा दिया गया। लगभग 3 महीने अस्पताल में रहा, पैर कई टुकड़ों में टूट चुका था, अब स्वस्थ हो गया। उस दरमियान भी सुपर 30 के बच्चों ने बहुत सहारा दिया, मनोबल बढ़ाया। तो दोस्तों जीवन में चैलेंजेस हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम बनाने में, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे सवाल इतना डिफिकल्ट है, शायद हो नहीं पाए। हमारे जीवन में भी बहुत ऐसा लगता है कि अब सुपर 30 चलाना मुश्किल हो गया। ये लोग जो जीवन से हारे हुए इंसान है, बेचारे इंसान है, दया के पात्र हैं वो लोग। हम लोग ने कभी भी बदला लेने का प्रयास किया, न उन पर कोई अटैक करवाने का प्रयास किया। ऐसे हारे लोग दया के ही पात्र होते हैं। बहुत परेशान किया, लेकिन हम लोग पेशेंस बनाए रखे। तो बच्चों आप अगर पेशेंस बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़िए, मेहनत की डोर थामे रहिए, देखिए सफलता जरूर मिलेगी। हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंज, अभी आप देखिए कोरोना है, बच्चे घर में, उनके जीवन में चैलेंज है कि भाई घर में रह के कैसे पढ़े। इसको भी पॉजिटिव तौर पर लीजिए कि आप तो हमेशा कंप्लेन करते थे कि स्कूल में मेरा दिन चला जाता है, कॉलेज में दिन चला जाता है, और शाम होती है तो होते ही कोचिंग सेंटर, ट्यूशन, पढ़ने को कहाँ वक्त मिलता है। लेकिन देखिए इस कारण आपको टाइम मिल गया है, कोविड-19 के चलते आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं घर पर रख के, इसका फायदा उठाए। हम देखिए आज टेक्नोलॉजी का ही फायदा उठा रहे हैं कि हमारे तमाम स्टूडेंट हम लोग जुड़े हुए हैं। आज कोविड-19 नहीं होता तो हम श्री कुमार जी हमको ओमान बुलाने वाले थे, मैं आने वाला भी था, वहां था, बोल के चला जाता, इतने लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होता। हर संकट में, हर कठिन दौर में, हर विपरीत परिस्थितियों में आप देखिए कैसे फायदा उठा सकते हैं। आप जरूर उठाइएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा, इस बात को हमेशा। सर आपकी कहानी और आपकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है सुनकर, कभी पापड़ बना के घर चलाया, या प्रणव जी को भी कितना प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी।
बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो याद आ रही हैं, और किसी ने बहुत ही खूब ही कहा है, शायद आप ही के लिए लिखा गया होगा कि किस्मत से लड़ने का भी एक अलग मजा है, किस्मत से लड़ने का भी एक अलग मजा है, ये मुझे जीतने नहीं देती और मैं हार नहीं मानता। क्या बात। हमारे साथ सुपर 30 के एक स्टूडेंट हैं, एटा से जुड़े हुए। शी इज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश, एटा से। आर यू देयर मधु? Madhu, can you Yes, hear ma'am. me? Okay. She's coming from a small town called Eta in Uttar Pradesh. And just because of some financial background problem, इतना अच्छा नहीं था उनके घर का माहौल. But still, she joined Super 30 and qualified IIT. And now she got into HBIT Kanpur also. And now she is working as a software developer. Madhu, we welcome you all to the webinar of Global IITians, and we would like to know your experience with Anand sir, because as a teacher, Anand sir कैसे थे, या आप उनके परिवार के साथ रही हैं, घर में उनके माता जी के साथ रही हैं, तो आपको उसकी कैसी यादें हैं, और आप उसके बारे में कुछ बताएं हम लोगों को. The present students joined us. Please share your thoughts with everybody, your experience with everybody. Madhu? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। आनंद सर के साथ मैं 2013 में जुड़ी थी। आनंद सर के साथ ही नहीं, उनके पूरे परिवार के साथ हमारा एक पारिवारिक रिश्ता बन गया था, दादी जी के साथ, मैम के साथ, सर के साथ। और सर सिर्फ हमारे लिए एक टीचर ही नहीं थे, हमने उन्हें अपने पिता की तरह, अपनी लाइफ में एक कोच की तरह माना था। हमेशा लाइफ की या सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, हर चीज में हमें उनसे सीख मिलती ही रहती थी। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, बल्कि पर्सनली मैंने जो एक चीज उनसे सीखी और अपनी लाइफ में हमेशा इम्प्लाई करती हूँ, दैट इज बी पेशेंट एंड काम इन एवरी सिचुएशन। जो भी सिचुएशन हो, जो भी चैलेंज हो, अगर आप काम रह के, पेशेंट रह के उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और एक नहीं, आपको कई सोल्यूशन मिलेंगे, फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपको क्या चुनना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर पीपल लाइक अस, जो हमने सर से सीखा और सर के साथ रह के सीखा। हमेशा एक पारिवारिक जुड़ाव रहा है सर के साथ और सर के फैमिली के साथ। और वो दिन हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम घर से दूर रह रहे हैं, हमें हमेशा यही लगा कि हम घर में रह रहे हैं और घर वालों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मधु बता रही है, आपने घर वालों के साथ बच्चों को रखा। मुझे अभी इसकी बातें सुन के ऐसे वो याद आ रहा था जैसे इंडियन माइथोलॉजी में होता था सर, लाइक गुरुकुल. So you have made that small town, I should not say small town, it's a big town, Patna. मुझे आज मधु की बातों से वो गुरुकुल याद आ रहा है. So how did you manage this? मतलब this concept of getting that Gurukul concept back over here. And one of the question also, one of the attendee has, participants had mentioned कि आपको ये कैसे आप मैनेज कर लेते थे इतने बच्चों को अपने साथ रखना? दो बातें थी। पहली बात थी कि बच्चे ही बहुत अच्छे थे, अपने ग्रुप बना के रहते थे, खाते पीते हंसते बोलते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि वक्त कैसे बीत गया। मधु, ट्विंकल, कई बच्चियां भी उस ग्रुप में थी, निधि, कई बच्चियां थी जो हमारे घर में रहती थी, माँ के साथ टेलीविजन कभी देख रही है, कभी खाना बना रही है, तो बड़ा अच्छा माहौल रहता था। आज भी मैं उस पल को बहुत मिस करता हूँ। और बाकी जो जिम्मेवारियां थी बच्चों के खाने के लिए सब चीजों को लाना, उनके मैनेजमेंट को देखना, उनके बिस्तर को देखना, किताबों को देखना, या एवरीथिंग अदर देन टीचिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे भाई प्रमोद की थी। तो उसने भी बाखूबी अपनी भूमिका को निभाई और बहुत अच्छा से मैनेज किया, और उसी का परिणाम है कि आज सुपर 30 इस मकाम पर है कि फिल्म बनी, लोग इंस्पायर हुए, 8 अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में, इंडिया में टैक्स फ्री हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म ये मैसेज देने में सक्सेसफुल रहा कि बच्चों, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास कुछ करने का जुनून है, भले ही सुविधाएं नहीं हो, तो अगर आप लगातार मेहनत करिएगा तो कुछ भी आप अचीव कर।
So one of the attendee wants to know, आपने कह तो दिया talent है और हो जाएगा, but motivation is very short lived. बहुत जल्दी demotivate हो जाते हैं. बच्चे पूछ रहे हैं कि अपने motivation को continuous रखना. हम अगर कोई lecture भी सुन लेते हैं या कोई video भी देख लेते हैं, but still there are moments of up and down. उनको कैसे handle किया जाए? बहुत अच्छी बात है, ये तो आप पर डिपेंड करता है। एक छोटी सी कहानी बताएंगे, बहुत छोटी सी। एक गांव था, गांव में शाम को माता जागरण का कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो लोग वहां पर आ रहे थे कि भाई यार रात में प्रोग्राम होगा, जागरण होगा, हम लोग सुनेंगे। छोटा छोटा गरीब परिवार का 4 भाई था, छोटा छोटा, चारों भाई जागरण पे गया और शाम 7 बजे ही 8 बजे ही जाकर कुर्सी पर सबसे अगली पंक्ति में अगले लाइन में बैठ गए। प्रोग्राम 10 बजे जब शुरू होने के था, बेचारा 7 बजे से वहां बैठा हुआ है। जैसे ही 10 बजे प्रोग्राम शुरू को होने को था, उसने हटाया, ऑर्गेनाइजर थे, हटो हटो भाई, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, यहाँ के डीएम आ रहे हैं शहर के, तुम क्या क्यों ऐसे कर रहे हो, चलो हटो हटो हटो। चारों बेचारे बाहर हो गए, जबकि वो 3-4 घंटे वेट कर चुके। अब देखिए चारों पर अलग अलग रिएक्शन हुआ। पहला भाई सोचा क्या, अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हटा दिया, सोचा ही नहीं कुछ, चला गया। दूसरा को लगा कि अरे देखो ये लोग बड़े लोग हैं, नेताजी हैं, मिनिस्टर हैं, डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनको बैठाया गया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छे लोगों को। तीसरा सोचा कि चलो भाई हमारा भी दिन आएगा, मेहनत भी करेंगे, कुछ अच्छा शायद होगा, हम भी आगे बैठेंगे। लेकिन चौथा व्यक्ति जो था, चौथा बच्चा था, वो सोचा चाहे जो कुछ भी हो, आज के बाद अभी घर पर जाते हैं, अपनी किताबों को झाड़ पोंछ कर हम पढ़ाई शुरू करते हैं, भले ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हम मेहनत करेंगे और कभी भी ये हम भूलेंगे नहीं कि मुझे अपमानित किया गया। और एक दिन वक्त मेरा भी आएगा जब मैं अगली कुर्सी पर, अगले लाइन की कुर्सी पर बैठूंगा। और वो मेहनत किया। जब भी वो हताश होता, निराश होता, उसको वो दिन याद आता था कि चलो हटो, तुम कहां से बैठ गए, आ रहे हैं मंत्री जी, आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। तो ये बातें उनके बार बार। तो आप अपने कोई जो प्रेरणा देने वाली बात है, कोई भी आपको उत्साहित करने वाली बात है, उसको आप कितनी देर तक अपने माइंड में रखते हैं, कितना आप में दृढ़ निश्चय है, कितना आप में डिटर्मिनेशन है कुछ करने का, कितना कुछ करने के लिए आप पूरी ताकत लगाए हुए, आप पर निर्भर करता। आप अपने सपनों को, अपने जोश को कभी भी मरने न। तो आपकी बात सुन के ही, the way you talk and share your feelings and the story itself, it's so motivating. Thank you, sir, for this motivation. But we have over here Twinkle. Twinkle, can you hear me, please? Twinkle from Rajasthan, a Super 30 student, but now she's in Mumbai. Yes. Twinkle, are you there? She Yes, graduated from NIT Nagpur, and now she's a senior design engineer in Mumbai. Twinkle, aapse I would like to know, when did you meet Anand sir after your studies and all? Last aapki mulaqat kab hui sir se? Ma'am, I met Anand sir in Mumbai itself in the movie premiere Super 30. So I met him in July. Yes, I remember it. How was your feeling like after that, from Rajasthan to Mumbai and this journey, and then seeing sir when the big hit blockbuster movie it was, Super 30, in which Hrithik Roshan ji also did a wonderful job. How was your feeling when you were standing in the midst of the premiere? Because I was also a part of it, and abhi bhi aapse baat karte karte aise lag raha hai jaise pura sab kuch mere samne aa gaya. What was your feeling? Yes, ma'am. Sure, I'll share my feelings. Hello, everyone, and hello, students who had joined us in this meeting. So, like when Anand sir called us, and ma'am also called us that movie is there in Mumbai, and all like whoever is there nearby and can join, has to join. But before that only we were like we have to go there, and anyhow in the movie premiere. So when I went there in
in the mall where everyone was there, team was there, and from the cinematography team was also there. So that time, that was a proud moment. Us, like everyone was looking at us and sir, and they were like, these are the students which we are seeing in the movie. So it was a great moment for us, for all of us. And when I saw the movie, it was actually like we all were crying. We all were crying. That inspiration, that every moment, each moment of the movie we had with us. So like it was really inspirational. And whoever is there in the meeting, and whoever had to join this, I will say to them that you should see the movie. You had asked one question to Anand sir, that how to keep motivated ourselves in the because we the study time is like if we prepare for any exam, at least we have to I think so. There is some network issue with Twinkle. Let's proceed towards ki yes, the movie was a blockbuster biopic of Anand Kumar sir, released in July 2019, directed by Vikas Bahl, Bollywood superstar Hrithik Roshan ji. Because they knew that why they came here, what is their Twinkle, can you hear me? You have some network issues. Your voice is not clear. So let's connect sometime later and we'll proceed towards the Yes, next sure. question coming to Anand sir. Sir, आपने मूवी में भी बहुत अच्छी तरह बताया, जैसे अभी we were talking to Twinkle, she did not have words, और आपने मूवी में भी बता दिया कि medium of speech is never a barrier. And हुनर में वो ताकत है जो किसी दौलत की मोहताज नहीं. अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा. A very inspirational, famous song from the movie Niyam Ho, which ended up with all goosebumps, in which we came to know that yes, everybody is equal. And हम लोग ने कोविड-19 में भी देखा है कि मदर नेचर ने सबको एक ही कतार में खड़ा कर दिया है. Mother Nature told us that we all are equal. Anand sir, there is a question coming up, as Mother Nature has said about COVID-19. What do you feel? What will be the education vertical in future? What will be the style of education in this COVID-19? आपने फिल्म में भी देखा होगा कि हम एक डायलॉग है कि जब पैसे नहीं हैं तो मैं और प्रमोद जाता हूं और होटल वाला से कुछ लेकर पैसा फिर बच्चों के लिए खाना लेके झोला में हम और प्रमोद निकल रहे. तो वहां पर हम लोग बोलते कि भाई जो क्राइसिस है, जो जरूरत है, वही इन्वेंशन करता है, वही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. तो ये बातें हम लोग दिखाए. तो अभी ये कोविड-19 में जो क्राइसिस आया उसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत पॉपुलर हुए, हर घर में पहुंचा. और जो बच्चा ऑनलाइन के जरिए नहीं देख सकता, जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया था, तो दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचा. तो ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचिंग की बात हो रही है, मीटिंग की बात हो रही है, आने वाले फ्यूचर में वो और बढ़ेगा. भले ही कोविड-19 आज की समस्या है, अंधेरी रात है, कल सुबह हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, 6 महीने साल भर में फिर जैसे हम लोग थे वैसे ही हो जाएंगे. लेकिन ये एक नया इन्वेंशन, एक नई खोज हो गई इसमें कि हम लोग इस जरिए जुड़ सकते हैं, हम लोग इस जरिए इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और बड़े से बड़े टीचर से भी कहीं के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं. पहले क्या था कि मान लिया जाए कि एक जगह कोई अच्छा टीचर है तो वो 100-200 बच्चों को, 400 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है. लेकिन अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई है. अब एक ही टीचर लाखों को पढ़ा सकता है और दूर दराज बैठे बच्चों को भी पढ़ा सकता है टेक्नोलॉजी के हेल्प से. ये चीजें नई आई है, इसको जारी रखने की जरूरत है. और मैं एक बात और बोलूंगा, बहुत अच्छी बात कि श्री कुमार जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी के फिजिकल क्लास जो होते हैं उसके अलावे टेक्नोलॉजी के भी माध्यम से लोगों तक जाना है. तो ग्लोबल IITian की पूरी टीम बहुत अच्छे
से प्रयास कर रही है कि बच्चों को नीट रहे, चाहे आईआईटी रहे, जेईई मेन रहे, एडवांस रहे, उसके लिए तैयारी करवाने के लिए लोग बहुत बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं। यदा कदा ये लोग हमसे पूछते रहते हैं, कुछ असाइनमेंट चेक करवाते रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरा डायरेक्ट कोई कॉमर्शियल इनसे अटैचमेंट नहीं है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि जो भी अच्छा काम करता है उसकी मैं मदद करना चाहता हूँ। तो ये लोग सच में गल्फ में एक नया सवेरा लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों में एक नई उम्मीदें जगाए हैं और कुछ अच्छा रिजल्ट देकर लोगों में कॉन्फिडेंस भी लाया है कि नहीं, ग्लोबल IITian अच्छा कर सकता है। So rightly said, Global IITian really has brought thousands of students and attendees in this platform. And you have also told the students that success is no accident. It's hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice. And most of all, it's the love for what you are doing. So, but फिर भी बच्चों के क्वेश्चन है कि कभी कभी वो लव टूट जाता है, लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जब काफी लॉसेस, काफी हार मिलती है सामने तो वो टूट जाता है। तो उसको एक पेरेंट पूछना चाहते हैं कि हम कैसे उसको दोबारा बच्चे को रिवाइव करें, हाउ डू वी मोटिवेट द। देखिए, आप लोगों ने तो जो स्टोरी सुनी होगी वो एक से एक स्टोरी है कि कैसे लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़े जीवन में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुकाबला किया है समस्याओं का, लेकिन प्रॉब्लम्स का। लेकिन मैं तो एक छोटा सा सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप श्री कुमार जी को रिक्वेस्ट करें, इस प्रोग्राम का पूरा वीडियो जो सेव करेंगे आपको भेजेंगे, सेंड करेंगे। जब भी बच्चा डिमोटिवेट हो, जब भी उसको हताशा लगे, एक बार ये प्रोग्राम दिलाइए और इन प्यारे प्यारे बच्चों की बातों को सुनवाइए। ये बच्चे जब कठिन परिस्थितियों में रहकर, गांव में रहकर, धूप में रहकर समस्याओं से मुकाबला करके आज देश विदेश में फैल गए, तो आप तो अच्छे कंट्री में रहते हैं, तमाम सुविधाओं में रहते हैं, आपके लिए तो आसमान की ऊंचाइयां कम पड़ी है। The questions pouring in, but yes, the clock is ticking. And आपकी मोटिवेशन की और सक्सेस मंत्र की बातें सुन सुनकर मतलब there is no end to know more about it. And as one of your student also said that if we start talking and एक इवेंट भी अगर हम याद करें तो वो इवेंट की भी एक कहानी बन जाती है। सर, इसी मोड़ पर हम इस एक लास्ट कुछ पंक्तियां बोलना चाहेंगे, उसके बाद मैं रेखा जी से कहूंगी कि उस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। The students who have joined with us and are feeling demotivated or lose their track, just remember few lines. It says like this: जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। आप चलना तो शुरू करो मेरे दोस्तों, अच्छे इंसानों की तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। And with these words, I'll hand it over to Rekha ji for taking it further. Rekha ji, am I audible? Are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, please. Thank you. So a program is not over until we thank the people who worked behind the scene. I would request Mr. Deepak Bora to give a vote of thanks. Good morning all. This is Deepak sir, academic head for the Global Group of Educational Institutes, predominantly present in the Middle East. I would take this opportunity to thank Mona ma'am for conducting the webinar so effortlessly, so efficiently. Obviously, my vote of thanks to Anand sir. Anand sir, you always have been inspiration to us and us teachers as well as the students. Today, again, you have inspired the students in this pandemic. From my deepest of the heart, I tell you a very big thank you from students in Qatar, Middle East, Oman. Our team of Global IITians and Global Education Center are always thankful to you. The students of Anand sir who have inspired the students here in Qatar and Middle East with their stories, with their dedication stories, and as well as their efforts which they have put in, and they have reached such heights of success. Students, let's understand one thing from all of them. Whatever you do, hard work is imperative.
Be it a normal situation or be it a pandemic, you cannot survive without hard work. Success and hard work go hand in hand. I, on behalf of all the team members of Global Education Center and Global IITians, would like to thank all of you. I would also like to tell you that in this journey, we can make your path simple. Global IITians and Global Education Centers are the pioneers in JEE NEET and JEE Advanced coaching as well. We are located in Qatar at 3 locations, that is Al Wakra, Doha and Al Khor, and in Oman at Al Wadiq Al Kabir. Okay, if you need any more assistance, please get in touch with us. We'll be more than happy to help you. From our end, it's a big thank you to all once again. Thank you very much. Deepak ji, I'd like to interfere over here. There is a request coming on the question site as well as chat also that abhi bhi logo ko tripti nahi hui hai. They are not satisfied listening to Anand sir. Anand sir, a small request from Shri Kumar ji also coming and Konark also कि अगर आप लास्ट में कुछ एक मैसेज टू जीईसी तो देंगे ही देंगे, बट हमारे प्यारे बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको कुछ मिनट कुछ सेकंड और सुनना चाहते हैं. सर हाथ जोड़कर आई रिक्वेस्ट प्लीज. या सर, थैंक यू. नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ह्यूज रिस्पांस है आप लोगों का, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है. देखिए, समाज में कई लोग ऐसे होंगे जो आपको निगेटिव चीजों को दिखाएंगे, आपका मूड निगेटिव करना चाहेंगे, परिस्थितियां निगेटिव करनी चाहेगी, लेकिन जीवन में हमेशा आप पॉजिटिविटी बनाए रखते. जीवन में सक्सेस के लिए अगर आप 4 मंत्र रखते हैं, मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल सकता हूं कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. सबसे पहली बात है कि आप में ट्रेमेंडस थ्रस्ट होनी चाहिए, प्रबल प्यास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट. हमेशा सोते जागते उठते बैठते, अगर आप आईआईटी करना चाहते हैं तो मुझे आईआईटी करना है, नीट करना चाहते हैं तो नीट, यूपीएससी करना चाहते हैं, जो भी आपका जीवन का लक्ष्य है, हमेशा सोचे कि करता है. प्रबल प्यास हमेशा, जैसे सुबह उठी नींद खुली, मान लीजिए आपकी, जैसे ही उठे आप सुबह नींद खुली तो आपको तुरंत याद आना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री का वो फार्मूला जो आप बना रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है. माइंड में अपने आप रिवीजन होना चाहिए कई सब्जेक्ट का, और करते 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 रात हो जाती है. इस तरह का एक सेमिनार था, ये तो वेबिनार. एक बार सेमिनार में कई बच्चे पूछे कि सर मैं कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं जिससे पता चले कि मैं इस साल आईआईटी कर जाऊंगा. प्यारे बच्चों, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं. आप सोचिए, क्या सुबह से शाम तक, रात तक केवल दिमाग में आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही बातें चलती है? अगर ऐसी बातें चलती हैं तो समझिए कि आप आईआईटी इस बार ही करने जा रहे हैं. दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको अपने जीवन में जरूर शामिल करिए, वो है पॉजिटिव थिंकिंग. अगर आपके मन में निगेटिव चीज हो जाएगी, निगेटिव बातें आ जाएगी, किसी भी चीज का आप निगेटिव देखने लगेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. आप हमेशा पॉजिटिव भाव से भरे रहिए. आप हमेशा सोचिए कि सफलता मुझे मिलेगी, हमारा उद्देश्य अच्छा है, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी. ये माइंड में हमेशा. तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहना. अथक प्रयास, बिना थके बिना रुके आप प्रयास करते रहिए. देखिए, अभी बच्चों का बताया कि दिन रात का फर्क को हटाकर दिन रात मेहनत करते रहते थे, पढ़ते रहते थे. और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ग्रेट पेशेंस, असीम. बहुत बार बच्चे आज मेरा सेशन सुनेंगे, आज जाके घर पर पढ़ेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें मोना जी ने कही, हमारे बच्चों ने कहा, उसको जाके उसको नहीं भाई आज से मैं तैयारी करूंगा, सवाल बनाएंगे, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, थोड़ा निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, फिर कल थोड़ा उत्साह हटेगा. नहीं है. कई बार हमने रवीश को ऐसे सवाल बनाने के लिए दिए और कहा कि जाओ रवीश बना के लो, बोला कि अच्छा सर बना के लाते, लेकिन ये प्रॉब्लम तो ओलंपियाड लेवल का है, काफी चैलेंजिंग लग रहा है, ये आईआईटी के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है. कोई बात नहीं, प्रयास करो. 2 दिन बाद रवीश आया, ताकि सर ये नहीं बन रहा है और सब प्रॉब्लम जो भी देते हैं मैं बना देता हूँ, ये तो बहुत टफ लग रहा है. हम चलो एक बार और ट्राई करो. फिर 4-5 दिन बाद पूछा क्या रवीश बना, बोला कि अरे सर अभी तक नहीं बना,
अब तो लगता है कि नहीं बनेगा। अरे भाई एक बार और ट्राई करो। फिर 4-5 दिन बाद आया, कहा कि सर अब तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है, पूरा निराशा लग रही है, कुछ पथ समझ में नहीं आ रहा। हम यही तो जीवन का खेल है रवीश, जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, सवेरा के तुम उतने करीब पहुंच रहे हो, एक बार और ट्राई करो। 1 घंटा बाद ही रवीश आया और कहा सर सवाल पहले पर, यही जिंदगी का सच है। ये चारों बातों को आप जीवन में उतारें, फॉलो करें। आने वाला कल आप ही का होगा, आप ही हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में माता पिता, समाज, सोसाइटी, देश सब का नाम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूं, हमेशा पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव माइंड से रहे। ग्लोबल IITian आपके साथ है, मैं भी ग्लोबल IITian के साथ हूं। आप लोग अच्छा करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत अगेन माफी चाहूंगी सर, फिर अगेन GEC टीम से क्वेश्चन आ रहा है एंड कोणार्क हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या हमें एक्चुअली वो बाद में भी फिर तंग करते रहेंगे अगर GEC नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो Konark, will you like to ask some question to Anand sir? Yes, ma'am. Yes. Hi, Anand sir. It's very pleasant to see you here and to hear motivational thoughts of yours. एक क्वेश्चन है सर, ये बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन मिडिल ईस्ट, कि एक बच्चों में डर है यहाँ पे कि CBSE और JEE को एक साथ कैसे मैनेज करें। मींस एक पेरेंट्स में भी यहाँ पे डाउट है कि अगर बच्चा CBSE नहीं पढ़ेगा तो वो JEE कैसे करेगा। एक पेरेंट्स का डाउट है अगर वो JEE करेगा तो CBSE नहीं कर पाएगा। तो एक ये मिथ बना हुआ है कि अगर दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों मैनेज नहीं हो पाएंगे। तो इसका अगर कुछ आप सोल्यूशन दे पाए बच्चों को यहाँ पे कि कैसे वो ये दोनों मैनेज कर पाए, तो आई थिंक ये इनको काफी बड़ी हेल्प मिल जाएगी। ये बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं। देखिए, चाहे IIT एडवांस हो, चाहे JEE मेन हो, या फिर मैथमेटिकल ओलंपियाड हो, कॉन्सेप्ट तो सब में एक ही रहता है। जैसा कि हमने बताया, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, हर चैप्टर को काफी डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, उसका काफी डिटेल पढ़ेंगे, उसका हाउ वाई समझेंगे, हर सवाल को तरीके से बनाएंगे, तो आपका माइंड इनोवेटिव हो जाएगा। कोई भी चैलेंज लेने के लिए आप रेडी रहिएगा। तो ही मैं कहता हूँ, CBSE का सवाल हो, बोर्ड के एग्जाम का सवाल हो, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल हो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट का यूज होता है। क्योंकि आप चीजों को रटते हैं, क्योंकि आप बगैर समझे हुए एक मोटा मोटी चीजों को समझते हैं, इसलिए आपको परेशानी आती है। तो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को बनाइए। परीक्षा कोई भी हो, एग्जामिनेशन कोई भी हो, जीत आप ही की। Thank you, sir. With this note, I think so we should take a leave from the GEC team as well as the attendees. It had been a very wonderful webinar. Rekha ji, Shri Kumar ji, thanks for giving us this opportunity to interact with the students. Students, I understand that the questions are endless, and I promise you on behalf of Anand sir ने जैसे कहा है कि जब COVID-19 settle होता है, we'll be there in Oman, or if GEC team likes, we can have these sessions in future also with specific questions. And with these words, I'll request Rekha ji to kindly take it over. And thank you very much for joining us, everybody. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, Anand ji, Mona ma'am, and all the panelists here. Thank you so much. It was a wonderful day. Thank you so much. We never thought that being so far apart, we can do this. Thank you so much, all of you. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Anand. Thank you. Thank you, Anand sir. Thank you. Thank you, Mona ma'am. Thank you, ma'am. All. Thanks for assisting.